السلام علیکم ناظرین، KNN نیوز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں KNN نیوز پاکستان۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سٹی کورٹ جنا آڈیٹوریم میں اور آپ کو بتاتے چلیں فاطمہ جمال میموریل ویلفیئر ارموگن میموریل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے بریسٹ کینسر اویئرنیس سیکشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں اور مزید آپ کو اس اویئرنیس سیکشن کے ویوز دکھاتے ہیں۔ تو احمد نظیم کافی سال کی خوبصورت دور پر آمین کہتے ہوئے اب آپ سب کے سامنے پاکستان کا قومی ترانہ پیش کیا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو کر ترانہ موجود ہیں ڈاکٹر سائمہ ظہور، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور کلینکل آنکولوجسٹ ہیں فرام JPMC۔ آپ کی ایکسپرٹیز میں نہ صرف بریسٹ کینسر بلکہ دیگر اور بھی کینسر کی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ شامل ہے۔ یو آر اے ڈسٹنگوشڈ آنکولوجسٹ dedicated to provide exceptional care and treatment to cancer patients in Pakistan. I would love to welcome Madam Dr. Saima ظہور. Please come on the stage and share your invaluable knowledge with us. آپ سب کی بھرپور تعریف میں میڈم سائمہ ظہور۔ السلام علیکم ایوری ون۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے یہاں دعوت دینے کا۔ آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ Now these days of course October is a breast cancer awareness month۔ اس مہینے میں ہم کینسر کی آگاہی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بریسٹ کینسر کی آگاہی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے بات کروں گی۔ women produce leaders of the nation, so their duty is 24/7۔ I think we all should salute and honor all the women around، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو۔ بٹ آف کورس آر ہیلتھ از آلسو پریشیس، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے طبقے میں خواتین کی صحت کو اتنا زیادہ نہیں امپورٹنس دی جاتی، پرائرٹی نہیں دی جاتی اگر ہم کمپیئر کریں ہمارے مرد حضرات کی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آئی تھنک یہ اتنا جو یہاں اہتمام ہوا ہے اور اس کو جو یہ کنڈکٹ ہو رہا ہے سیشن، یہ آپ لوگ کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو شاید ایک چھوٹی سی بات یہاں سے سیکھ کے جائیں اور اس پہ امپلیمنٹ کریں اور شاید اس سے کوئی زندگی بچ سکے۔ ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ خواتین میں پائے جانے والا سب سے زیادہ جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے خواتین میں نمبر 1 پہ وہ بریسٹ کینسر ہے۔ وی ٹاک اباؤٹ پاکستان، دیٹ پاکستان از ہیونگ اے ہائیسٹ انسیڈنٹ ریٹ آف ڈیولپنگ بریسٹ کینسر امنگ ایشین کنٹریز۔ یعنی ایشین ممالک میں سب سے زیادہ جو بریسٹ کینسر کی شرح ہے وہ پاکستان میں ہے انفارچونیٹلی، وچ از الارمنگ فار آل آف اس۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے رسک ہیں، بہت سارے کازز ہیں جس کے بارے میں تھوڑی سی کوشش کروں گی کہ جتنا جلد آپ کو بتا سکوں۔ متس ہیں بہت سارے اس حوالے سے جو کہ ہمیں غلط فہمیاں ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے علاج کے بیچ میں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو پہلی چیز جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ ہے کنورسیشن نہیں ہے، بات کریں گے تو بات بنے گی، ہم بات ہی نہیں کرتے اس حوالے سے۔
تو سب سے پہلی بات یہ ایک بیماری ہے، ایک تکلیف ہے جس کا علاج ممکن ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ہم اس کو ایک اسٹگما کنسیڈر کر رہے ہیں، ایک سوشل ٹیبو کنسیڈر کر رہے ہیں، کلچرل بیریئر کہیں نہ کہیں آ گیا ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، اس کے بارے میں بتانا نہیں ہے. نہ صرف خواتین مردوں سے تو یہ بات چھپاتی ہیں، یہ عورتوں سے آپس میں بھی یہ بات ڈسکس نہیں کرتی. اور ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمیں بہت لیٹ ڈائگنوز ہوتا ہے. پہلی چیز ہمیں اویئرنیس کی کمی ہے، ہمیں آگاہی نہیں ہے اس بارے میں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے، ہمیں اگنورینس ہے، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ڈینائل فیز میں رہتے ہیں. تو وہ جو اگنورینس ہے، جو کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے، اور یہ ہماری خواتین میں بہت زیادہ ہے. ہمیں پتہ ہے اتنے اویئرنیس سیشنز ہو رہے ہیں، میرے خیال میں اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کافی حد تک لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ کینسر کی اسکریننگ کیسے کی جاتی ہے، اس کی آگاہی کے لیے کیا 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 جاتا ہے، اور کینسر سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنی صحت کو پرائرٹائز نہیں کر رہے، امپورٹنس نہیں دے رہے. پاکستان میں اس وقت 90,000 سے زیادہ کینسر کیسز اینولی رپورٹ ہوتے ہیں، جس میں سے اراؤنڈ 40,000 to 50,000 کیسز یا خواتین ختم ہو جاتی ہیں اس بیماری کی وجہ سے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کینسر کی جو سٹیج ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو سوشل ٹیبو کنسیڈر کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کلچرل بیریئر ہے، کہیں نہ کہیں شرم کی وجہ سے ہم یہ باتیں ڈسکس نہیں کرتے. کہ جتنی بھی ٹیم ممبرز ہیں پلیز اسٹینڈ آن یور سیٹس. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کی بھرپور تالیاں ان کے حوصلے کو بڑھائیں گی. اور میں گزارش کروں گی مس ہانیہ کاشف سے کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیسا سفر تھا، کتنا کٹھن تھا. یہ پروگرام منعقد کیا گیا ٹچ بار ایسوسیشن کا میں بہت زیادہ شکر گزار کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا. اور تمام ہمارے گیسٹ جو کہ یہاں پر موجود ہیں، اسپیشلی میری بریسٹ کینسر ٹیم جو کہ سروائیور ہیں یہاں پر موجود ہیں. ہم معاشرے کو پازیٹیوٹی دکھانا چاہتے ہیں کہ کینسر آج کے دور میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ موجود ہے. اگر ارلی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے اور آپ بر وقت علاج کے لیے کسی اچھے ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں تو اس چیز کے لیے جو ہے نا آپ بالکل پریشان نہیں ہوں کہ اوور آل آپ کی پرسنالٹی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جب کیمو تھراپیز ہوتی ہیں، ریڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور پھر ہمارا باڈی آرگن اتار دیا جاتا ہے تو عورت ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. ٹوٹ پھوٹ اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے. اوکے، اچھا، مجھے کہا گیا ہے کہ میں اپنی بریسٹ کینسر سروائیور کی جرنی آپ کو بتاؤں. 2021 میں مجھے جو ہے بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا. دین میں ٹریٹمنٹ کی طرف گئی اور 2021 کے اینڈ میں میری ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد میری ہارمونل ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوئی جو کہ میں فالو اپ کے لیے اپنے SIUT ہاسپٹل جاتی ہوں. ابھی تقریباً 2024 فیب میں میرا بریسٹ ریکنسٹرکشن ہوا ہے. الحمدللہ میں نے سرچنگ کی اس چیز کے لیے کہ اگر میں اتنا ٹھیک ہو گئی ہوں تو میں اپنا باڈی آرگن دوبارہ سے امپلانٹ کروا سکتی ہوں. اور اس کے لیے جو ہے وہ سول ہاسپٹل پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اچھا، اس تمام جرنی میں آپ کو سوسائٹی کا ایک ایسا چہرہ دکھانا چاہتی ہوں جو کہ اچھا نہیں ہے. جب ہمیں بریسٹ کینسر ہوتا ہے تو موسٹلی لوگ جو ہیں ہمیں اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے حقارت کی نگاہ سے. کیوں؟ یہ دنیا ہے، یہاں پر ہم آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت ساری بیماریوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایز اے بریسٹ کینسر سروائیور جب میں نے سروائیو کیا تو میں نے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑا جو کہ فریشر تھے،
جو نئے آئے تھے اور اپنی بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے. تو میں ایز این ایڈوکیٹ کام کرتی ہوں. کینسر پیشنٹ کی بھی میں مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہوں ٹھیک کرنے کی, اور اس کے علاوہ جو ان کی فیملیز ہے ان کا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں. تھرو آؤٹ ان کی جرنی میں ہم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں. الحمدللہ آج کا پروگرام ایک ایسی بیماری سے ہے جس نے سب کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے, اور کیونکہ ہم اربوں جیسے فاؤنڈیشن کی حیثیت سے اس بات کا درد کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے درد میں شریک ہوں, اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر اور ہم کو موقع دیا, جزاک اللہ خیر کیا. بیماری اور شفا کے مطابق حساب کا کیا نقطۂ نظر ہے میں اس سے تھوڑی سی بات چیت کروں گی. الحمدللہ ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, اس پر یقین کرتے ہیں. الحمدللہ اس کائنات کو جو بھی گہری نظر سے دیکھتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہے جس نے دنیا کو, اس کائنات کو سنبھال رکھا ہے. کوئی ہے جو صبح میں سورج طلوع کرتا ہے اور شام کو غروب کرتا ہے. کوئی ہے جو ان سب پہاڑوں کو, درختوں کو لہراتا ہے, ان جھرنوں کو اور دریوں کو بہاتا ہے. کوئی ہے جو پہاڑوں کو زمین سے ہلنے سے روکنے سے روکتا ہے. یہ کون ہے؟ اس کے لیے اگر ہم ذرا بھی غور کریں تو ہمارا تعلق اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے رب العزت سے مل جاتا ہے. ہمارے دل کی تاریں اس سے جڑ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن ہم اپنے بچپن سے کیونکہ ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان کی خوبصورتی میں ان کی خوبصورتی کی نظر آتی ہے. ہم آم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں آم بہت مزے کا ہے, کون سے علاقے کا ہے, لیکن ہم اس کا تعلق رب العزت سے نہیں جوڑتے کہ وہ کتنا رحیم ہے جس نے اتنا خوبصورت پھل پیدا کیا. ہم خوبصورت پھول دیکھ کے گلاب کی تعریف تو کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ گلاب میں رنگ ڈالنے والا کون ہے. یہ کیونکہ ہم اتنے زیادہ ان چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہیں تو ہم اس کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی دکھاتا ہے کہ کیسے کیسے میں تمہارے پاس ہوں, کیسے کیسے میں تمہارے ساتھ ہوں. دنیا میں انسان نے اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ اب کی طرف توجہ ہی نہیں چاہتی. اپنی بنائی ہوئی مصنوعات میں اتنا زیادہ غرق ہو گیا کہ اس کو رب العزت کی بنائی ہوئی مصنوعات نظر نہیں آتی. اور جو یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں, اور اپنے آپ کو پھر وہ اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے بھی وہ محتاط کرتا ہے. زندگی کا یہ سفر اور اعتماد یقین کی بنیاد پر ہے, اور یقین کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا قرآن. یقین کی بنیاد ہمارا قرآن ہے. آج سائنس کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس دانوں نے بہت زیادہ ترقی کری, حیرت انگیز ترقی کری ہے, اور ان کی محنت یقیناً غور و فکر کا نتیجہ ہے. لیکن غور و فکر ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے مشرق نے اتنا نہیں کیا جتنا کہ مغرب نے اس سے غور و فکر کیا. تو آج ہماری جتنی بھی سائنسی ترقی ہے وہ مغربی دنیا کی محتاج ہے, اور ہم کو انہیں فالو کرنا پڑتا ہے. حالانکہ یہ ترقی, یہ غور و فکر ہمارے قرآن سے ہی انہوں نے حاصل کیا ہے, اور ہمارے قرآن میں ہر بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز 1400 سال پہلے لکھ دی, ہم کو سمجھا دی اور کہا بھی کہ اپنا یہ قرآن کیا تم قرآن سے غور و فکر نہیں کرتے. تو غور و فکر کرنے والے اصل میں جیسے کہ اس بات نے کہا کہ کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو جو یورپ میں, تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو واقعی میں کہ وہ ترقی کر گئے اور ہم نے اپنے قرآن کو چھوڑ کے خواب ہو گئے. رسول بھی جو ہے ہمیں اپنے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں نتیجے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہی مومن پسند ہے جو زیادہ ضعیف کے مقابلے دیش ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ظاہر جو بھی ہمیں بتائیں گے سمجھائیں گے. میں بحیثیت ایک سٹیزن کے, ایک بحیثیت ایک سینسٹیو یا آپ ہی کہیں گے, میں یہ صرف تھوڑا سا میسج دینا چاہتی ہوں کہ
मॉडल के इस्तेमाल में से मुझे फातिमा जमाल मेमोरियल ने इस एजाज़ से नवाजा कि उन्होंने मुझे तिलावत का मौका दिया और मुझे शील्ड से नवाजा, और मैं बहुत खुश हूँ। आपने स्पीच की थी, जी, क्या मिला आपको? मुझे ये शील्ड मिली। जी, ये दिखाइएगा शील्ड आप। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है हमें कवरेज दिया। और देखें, आज का जो सेमिनार हमने सिटी कोर्ट ऑडिटोरियम में रखने का मकसद ये था कि लीगल फैटर्निटी, हमारे लॉ से रिलेटेड, हमारे कोर्टों में जितने भी लोग काम करते हैं उनको जो है अवेयरनेस दी जाए, ताकि माँ बहनें हमारे घर में भी होती है, हमारे घर में भी बच्चियाँ होती है, ताकि सबको जो है अवेयर किया जाए और प्रिकॉशन दिए जाए। तो इस हवाले से हमारे पास जो है गेस्ट स्पीकर मुख्तलिफ जो है MPA, MNA और जो डॉक्टर साहिबान की टीम थी, वो जो है हमें जो है वो बताएंगी और प्रिकॉशन देंगी कि किस तरह से हम जो है इससे एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं और किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फातिमा जमाल वेलफेयर मेमोरियल वेलफेयर की प्रेसिडेंट हुमा जमाल मौजूद है। मैडम, आज जो ये सेक्शन रखा गया था ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस सेक्शन रखा था, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा तारुफ करवाया जा चुका है। हुमा जमाल मेरा नाम है। फातिमा जमाल मेमोरियल वेलफेयर की जानिब से ये पहला ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेमिनार नहीं है। इससे पहले भी हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेमिनार्स मुनक़िद कर चुके हैं और हम ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के इश्यूज़ को देख रहे हैं। बेसिकली फातिमा जमाल मेमोरियल वेलफेयर अवेयरनेस के साथ साथ जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स इश्यूज फेस कर रही होती हैं उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। लाइक, एक बीमारी जब एक औरत को जकड़ लेती है तो इसका मतलब एक औरत नहीं होती है, एक पूरा खानदान होता है जो कि फाइनेंशियली सफ़र करता है, उनके मेल भी सफ़र करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम इनकी रूट कॉजेज़ पर काम करें, अवेयरनेस दें ख़वातीन को इतनी कि खुद को भी इस जानलेवा बीमारी से बचा सकें और अपने घर वालों को भी इस जानलेवा बीमारी के असरात से वो बचा सकें। कल ही मुझे पता चला कि लास्ट ईयर मेरे ब्रेस्ट कैंसर में सेमिनार में एक खातून थी सर्वाइवर जो मुझसे कनेक्ट हुई और मैंने उनकी जितनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो कैंसर के 4th स्टेज पर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। इसी तरह से हम आए रोज़ ये वाक़या सुनते रहते हैं। 18 अक्टूबर को एक और करीबी जिनसे ताल्लुक़ था उनकी डेथ हुई। कल ही मेरे पास फ़ोन आया कि एक और बिल्कुल डेथ बेड पर पड़ी हुई हैं और ICU के लिए अपील कर रही हैं। तो नाकाफ़ी सहूलियात पर बात करना मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस तो हम ले रहे हैं, लेकिन एक बीमारी जब हो जाती है तो सहूलियात क्या हैं। पाकिस्तान में कराची में एक कोई भी इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो वेल ऑफ फैमिली से भी हो, जितना महंगा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि अगर एक गरीब खानदान से एक खातून को ये मर्ज लाक हो जाता है तो वो किस तरह से अफोर्ड करे। अमीर अफोर्ड नहीं कर सकती कोई खातून, तो गरीब किस तरह से अफोर्ड कर सके। सरकारी अस्पतालों में ICU नहीं मिल रहा, प्राइवेट अस्पतालों में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या इस मर्ज का हल सिर्फ और सिर्फ मौत है? तो मेरा ये अवेयरनेस सेमिनार बेसिकली हुकाम वाला के लिए भी है, लोगों के लिए, खवातीन के लिए तो है, लेकिन हुकाम वाला की भी तवज्जो में जानिब मबजूल करवाना चाहती हूँ कि खवातीन को वो सहूलियात दी जाए कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश उन पर आती है तो आप किस तरह से उनके साथ खड़े। अच्छा मैडम, जैसा आपने बताया है कि ये जो फातिमा जमाल वेलफेयर जिस तरह काम कर रही है, आवाम की खिदमत कर रही है, आप क्या समझते हैं कि हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो इस तरह के खिदमत गुजार आवाम के लिए कुछ एक्शन लें या कुछ करें? बिल्कुल, हमारी हुकूमतें भी करती आई हैं और मेरे ख्याल में कोई भी काम पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही चलता है। बात यह है कि हर एक को जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। ऑर्गेनाइजेशन अगर हुकूमत के साथ में कोऑपरेट करेंगे, निशानदेही करेंगे कि ये मसाइल हैं और वो मिलजुल कर काम करेंगे तो तभी हम कुछ कमी ला सकते हैं। खत्म हम नहीं कर सकते इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन कुछ कमी हम ला सकते हैं जब हम हाईलाइट करने वाले बने, हम रेस करने वाले बने, हम उनके सहूलतकार बने, हुकूमती इदारों के सहूलतकार बने। हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना है कि कौन कर रहा है, हमें करना है कि मदद होनी चाहिए, उनसे ताउन लेना है हमें। तो बहुत से अच्छे इदारे काम भी कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनका मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, कि जो गरीबों की मदद के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन सहूलियात नाकाफी है। मैं वर्ड नाकाफी यूज कर रही हूँ, तो नाकाफी सहूलियात से बात करना और डोर स्टेप पर पहुंचाना सहूलत के, जो कि बुनियादी हमारा आईनी हक भी है कि हमें आईनी हुकूक सेहत के आवाम के डोर स्टेप तक पहुंचाने। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है। अच्छा मैडम, जैसा आपने कहा है अवेयरनेस कंपलसरी नीड है, खवातीन लास्ट स्टेज पर आने के बाद
शेयर कर रही होती हैं अपनी प्रॉब्लम्स कुछ भी, तो आप इस हवाले से उन खवातीन को क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? मैं खवातीन को ये कहना चाहूंगी कि देखें, केयर करें, अपनी केयर करेंगी तो आप सिर्फ अपनी केयर नहीं, एक पूरे खानदान की केयर करेंगी, क्योंकि एक खानदान की केयर उसी वक्त हो सकती है कि जब आप इनिशियल स्टेजेस पर अपनी केयर कर लें और बता दें कि मुझे ये तकलीफ हो रही है। अगर आप उसको छुपाएंगी तो इसका मतलब आप अपनी पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को परेशानी में डाल रही हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी केयर करें, सबसे पहले अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और इसी तरह से आप अपने पूरे खानदान को बहुत खुशहाल रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस वक्त जो हमारे KNN न्यूज पाकिस्तान के व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? KNN न्यूज के व्यूअर्स को मैं यही मैसेज दूंगी कि हमेशा मैंने देखा है KNN न्यूज अवेयरनेस सेशंस को कवरेज देते हैं, और KNN न्यूज का भी मुआशरे की तरक्की और भलाई में बहुत अच्छा किरदार रहा है। तो ऐसे ही ये काम करते रहें तो हम मिलजुल कर कुछ न कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, फातिमा जमाल मेमोरियल वेलफेयर के जो एक ब्रेस्ट कैंसर सेमिनार रखा गया था, उसमें इस वक्त हमारे साथ मिसेस अली भी मौजूद है। इनसे भी जानेंगे, आज इस सेमिनार में आप आई हैं मैडम, कैसा लगा आपको? आप क्या समझते हैं कि इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस मैसेज है जो कि हमारी ऑडियंस को जाना चाहिए, क्योंकि हम इन टॉपिक्स के ऊपर ना तो बात करते हैं और ना ही हमारी फीमेल्स को इतनी अवेयरनेस है। तो इस तरीके के टॉपिक्स होने चाहिए जहाँ पे लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो अपनी जो ये जर्नी है उसको बेहतर बना सकें। और जैसे कि अंदर लेक्चर चल रहा था कि अगर हम इसको बहुत इनिशियल बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इसका इलाज मुमकिन है, जो कि हमारी फीमेल्स को नहीं पता। और इसी तरीके से हमारे यहाँ ज़्यादातर इससे जो है वो जो ख़वातीन हो जाती हैं इस मर्ज़ का, वो शिकार हो जाती हैं, उनको जो है वो किसी इसका मसले का हल भी नहीं पता था। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, जो सेमिनार होते हैं, वो उनको अटेंड करना चाहिए ताकि अवेयरनेस बढ़ती रहे और लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठाएं। जो बिलखुसूस हमारे KNN न्यूज पाकिस्तान के व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मैं सबसे पहले थैंक्सफुल करूँगी KNN न्यूज़ का, जो कि इतना इन्फॉर्मेटिव जो है वो इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुँचा रहे हैं, जिससे वो अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। और बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है कि आप मल्टीपल इस तरीके के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। वेरी थैंकफुल फॉर यू एंड नाइस टू मीट यू। थैंक यू जी। मैडम, ये बताइएगा, जो अवेयरनेस माशाल्लाह सेक्शन रखा गया है, क्या कहेंगे सर? अवेयरनेस का सेशन जो है वो बहुत अच्छा इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, और इस तरह के जो सेशन है ना वो लाजमी होने चाहिए। आपको पता है कि खवातीन में इस वक्त कैंसर जो है वो कितनी जल्दी डायग्नोज हो रहा है। हर 8 में से जो है वो 1 औरत को जो है कैंसर डायग्नोज हो रहा है, और अवेयरनेस लोगों को है नहीं। लेकिन मैं एक आपके चैनल पे इससे एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इस ट्रीटमेंट को ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसके लिए जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जिना हॉस्पिटल, मेरा खुद का भी एक एक्सपीरियंस है, टाइम नहीं मिलता। थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुमेरा शान अली साहिबा, जो कि इस अवेयरनेस सेक्शन का आप भी हिस्सा थी। क्या कहेंगे इस अवेयरनेस सेक्शन के हवाले से जो ये रखा गया? सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे माशरे में एक तो वैसे अलमिया है कि जो इस तरह की अवेयरनेस होती है वो दी नहीं जाती है, लोग आपस में डिस्कशन नहीं करते। इस तरह के अवेयरनेस सेशन बहुत अच्छे होते हैं और लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अवेयरनेस आती है कि हाँ यार, हमें अपने आप को प्यार करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ऐसे अवेयरनेस नहीं हो तो फिर वही बात है ना कि अपने से प्यार नहीं होगा, अपने सेहत का ख्याल नहीं होगा, तो फिर दूसरों का कैसे प्यार? बिल्कुल। इस वक्त जो माशाल्लाह आप खुद भी एक यंगेस्ट पर्सनैलिटी हैं, इस वक्त जो व्यूअर्स हमारे KNN पाकिस्तान के आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? उन्हें मैसेज दूंगी कि ये अवेयरनेस सेशन सब लोग कंडक्ट कर रहे हैं, सब लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप लोग अटेंड भी कर रहे हैं, आप लोगों के पास सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया बहुत पावर रखता है आजकल। आप लोग सब कुछ देखते हैं, उसमें सारी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से एग्जामिनेशन करनी है, कैसे इस मर्ज से बचा जाए। तो जब तक आप इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है अवेयरनेस सेशन का। तो वो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो अपनी जिंदगी को जन्नत और जहन्नुम बनाना आपके अपने हाथ में। तो लव योरसेल्फ और अपने लिए अपनी जिंदगी को जन्नत बनाइए और अपना ख्याल रखिए और अपने आप से प्यार रखिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सिटी कोर्ट में मौजूद है और आपको बताते चलें कि जीना ऑडिटोरियम में हम मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट साहिबा नौरीन मौजूद है। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा, ये जो आज फातिमा जमाल मेमोरियल वेलफेयर की जानिब से जो एक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से सेमिनार रखा गया था, आपने भी इसमें शिरकत की एज अ स्पेशल गेस्ट, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। फातिमा जमाल मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो एक बहुत अच्छा ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए यहाँ पर एक सेशन का इनकाद हुआ, जो कि हमारे सिटी कोर्ट में था। हम होस्ट भी थे और हम गेस्ट भी थे। होस्ट इन द सेंस कि हमारा कोर्ट जो है वो आज कराची बार एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक है, तो हम होस्ट भी थे और यहाँ पर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर में थी मौजूद, तो हम गेस्ट भी थे।
अच्छा, तो बिल्कुल सर, फातिमा जमाल जो वेलफेयर है इसकी जो प्रेसिडेंट साहब है हुमा जमाल जी उनके बारे में आपका क्या कहना जी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी एक एफर्ट की है और मैंने उनकी काफ़ी तारीफ सुनी है। और आज भी मैंने उनकी मेहनत देखी, उनकी एक्टिविटी देखी और उस पूरे इवेंट को जिस तरह से वो लेके चली हैं वो वाकई में कमेंडेबल है। और जिस कॉज के ऊपर वो काम कर रही हैं, वैसे तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ मैंने बहुत सुनी है कि वो बहुत अच्छे से काम करती हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक पर उन्होंने बात करी है इससे बात बहुत कम होती है। और स्पेशली हम लोगों को इस तरफ लेकर आना है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये सिर्फ औरतों का मर्ज नहीं है, ये मर्दों का भी मर्ज है। तो लोगों को इस बारे में बताना, इस बारे में बहुत अच्छी एक स्पीच जो है, इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो दिया हमारी डॉक्टर जो आई थी JPMC से। उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के साथ शेयर करी और आप देख सकते थे कि पूरा ऑडिटोरियम जो है माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है और पूरा ऑडिटोरियम तकरीबन फुल था। बिल्कुल सर, इस तो वक्त हमारे कैनन के व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं जी। उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैं यही कहूंगी सबसे पहले तो कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो एक अच्छे कॉज को लेकर चलती हैं उनको सपोर्ट करें। अगर आप ऐसे से नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट अपना टाइम आप दे सकते हैं। दूसरा ये, इस तरह की कभी भी कहीं पर भी, सिर्फ फातिमा जमाल नहीं, कहीं पर भी कोई सेशंस हो रहे हैं तो आप वहाँ जाएं, उसे अटेंड करें और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन आगे भी दूसरों तक पहुँचाएं। तो यही मेरा मैसेज है सबके लिए कि इस वक्त अभी तो हम अक्टूबर से बाहर निकले, लेकिन ये जो आपका ब्रेस्ट कैंसर के टॉपिक का है इसको यहीं पर खत्म ना करें। नवंबर दिसंबर हर महीने को जो है वो आप रखा जाए बिल्कुल, क्योंकि ये एक महीने में बात करिए आपने और फिर 11 महीने आप भूल गए और फिर अक्टूबर में आपको याद आ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज है और बहुत स्पीड से ये जो बीमारी है ये फैल रही है। इस वक्त हमारे साथ हानिया काशिफ भी मौजूद है। मैडम ये बताइएगा, ये एक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो एक सेमिनार रखा गया था फातिमा जमाल मेमोरियल वेलफेयर की जानिब से, आप क्या समझती हैं कि खवातीन को कंपलसरी ऐसे सेमिनार की नीड? बिल्कुल खवातीन को ऐसे सेमिनार्स की नीड है। देखें, जब तक कि अवेयरनेस नहीं होगी किसी चीज़ की या हम सोसाइटी को एजुकेट नहीं करेंगे तो ये तो एक साइलेंट जो है वो बीमारी है, ये साइलेंट किलर है। जो आपका सिस्ट है कभी जाके 3rd स्टेज में डायग्नोस होता है, कभी उस 2nd स्टेज में डायग्नोस हो जाता है, कभी उसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, तो अर्ली डायग्नोस हो जाता है, सॉरी। तो हम अगर अपनी सोसाइटी में खवातीन को इस हवाले से अवेयरनेस दें, ठीक है, कि कुछ सिम्टम्स एंड कोजेस हैं, अगर आप वो फील करती हैं, जैसे आपका निप्पल का कलर चेंज हो जाना या फिर आपके निप्पल में से किसी चीज़ का मवाद निकलना या आपके ब्रेस्ट के साइज में दोनों में कुछ डिफरेंस हो रहा है या आपको कुछ एबनॉर्मलिटी फील हो रही है अपनी बॉडी में। क्योंकि देखिए, जैसे हम अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं इस तरह से हमें अपने जिस्म का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तमाम खवातीन से ये कहूँगी कि ये जो सेमिनार्स अक्टूबर में एंड नवंबर में मुनक्किद हो रहे हैं ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं इस बीमारी से गुजर चुकी हूँ, मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं आपको ये बताऊँ कि किस कदर तकलीफ का इसका इलाज होता है और इलाज के बाद आप अपने जो नर्व्स हैं उन पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते, आपकी जो मेमोरी है वो लॉस्ट होना शुरू हो जाती है। तो मैं एज अ रोल मॉडल सोसाइटी में खड़ी हुई हूँ और मैंने शमा फिरोजा के नाम से एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया जिसमें हमने कैंसर पेशेंट, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी हॉस्पिटल से हो, उनको वहाँ पर गैदर किया और हम अवेयरनेस भी देते हैं और थ्रू आउट द जर्नी ऑफ कैंसर हम उनके साथ रहते हैं। जब उनकी कीमोथेरेपीज हो रही होती हैं, रेडिएशन हो रही होती है या फिर उनकी ब्रेस्ट सर्जरी हो रही होती है। बट आई एम सॉरी टू से कि इस वक्त जो खवातीन, उन्हें जैसा आपने स्टेप बाय स्टेप बताया 1 2 3, फर्स्ट स्टेप के बाद भी उन्हें पता नहीं होता कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी जन्म ले रही है। तो आप क्या समझते हैं कि उन खवातीन के लिए क्या चीज कंपलसरी है? उनके लिए कंपलसरी देखें क्या चीज़ है कि आजकल आज से 4 साल पहले मीडिया इतनी अवेयरनेस नहीं दे रहा था जितनी अवेयरनेस मैंने इस मंथ में देखी। मीडिया ने बहुत ज्यादा इसमें अपना कलीदी किरदार अदा किया और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन सामने आई जो कि इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि खवातीन हेजिटेशन फील करती हैं अपने बारे में बताने में के लिए, अपनी फैमिली से पहले वो छुपाएंगी, देन अगर वो मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम था ब्रेस्ट कैंसर पे और डेफिनेटली फातिमा जमाल मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है माशरे में, जो कि लोगों को डिफरेंट डोमेन्स में, मतलब हर सेक्टर में ये लोग काम कर रहे होते हैं।
तो इसको हम इनको बड़ा खराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाल्लाह क्योंकि हुमा जमाल जो इसको रन करती हैं वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की कोर टीम का हिस्सा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वो इस तरीके के प्रोग्राम्स करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला हम इनको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में हमारा पूरा सेगमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट का, उसके थ्रू भी इंशाल्लाह ताला हम इस अवेयरनेस को मैक्सिमम रीच देंगे और जो रूरल एरियाज हैं, जो गाँव और गोट हैं, उन तक भी पहुँचाएंगे क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास इस्तेताअत नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती जो कि वो अपना इलाज भी कर सकें या सेल्फ एग्जामिनेशन करा सकें। तो इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ मिलके और ज़रूर इस अवेयरनेस को हर घर तक पहुँचाएं। अच्छा सर, बिल्कुल आपके इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए एवरी मंथ। जी डेफिनेटली ये होने चाहिए, हर डोमेन में होने चाहिए। अवेयरनेस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ को आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है तो आपको ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रहे। और ये तो बहुत एक बड़ा इशू है ब्रेस्ट कैंसर, उसकी तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट लेवल पे भी हम इंशाल्लाह इसको वुमेन एम्पावरमेंट में भी इंडक्ट कराएंगे ताकि हमारी जो खवातीन हैं वो माशरे में एक बहुत बड़ा किरदार रखती हैं। डेफिनेटली मेरी भी वालदा हैं, मेरी भी सिस्टर्स हैं, मेरी भी वाइफ है और हमारी फैमिली, हर फैमिली में खवातीन होती हैं, तो हमने उनको हर उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है जो कि उनके लिए जान देने का बाइस बन सके। तो इंशाल्लाह ताला हम हर चीज़ में इनका साथ देंगे और इन अवेयरनेस सेशंस को, इसकी तादाद को और बढ़ाएंगे ताकि जी नाज़रीन, जैसा हमने आपको अवेयरनेस सेमिनार जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से रखा गया था जिना ऑडिटोरियम सिटी कोर्ट में, उसके व्यूज दिखाएं। इसी के साथ अपने मेजबान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाजत। KNN पाकिस्तान, कराची। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखा करें KNN पाकिस्तान, सच से हक तक।